Hello students, a very warm welcome to you all. Let us start the topic that we are dealing with in the previous class, and we were dealing that what are the accounting treatment in the retirement of the partner in the partnership firm. In the previous class, we have already discussed the concept and the consequence of the retirement when a partner takes the retirement from his or her partnership firm. Means the partnership in the partnership firm, when the partner takes the retirement, what are the situation and what are the condition on which the partner takes the retirement, and a part of that we have also discussed that what are the consequences in the books of account as well as what are the consequences in the firm when the partner takes the retirement in his firm, or you can say from his firm. While dealing that, we have already discussed before you that as per the consequence in the books of account, the calculation of new ratio and gaining ratio, a part of that the calculation is also made related to the payment of the partner, you can say retiring partner, and where we have deal that the retiring partner collect the payment of capital obligation, as well as the payment of share in goodwill, share in intangible assets and liabilities, and also the payment in the share of revaluations profit and loss, and also he will collect the payment related to the various loans and the transaction which is entitled to the firm and the organization also. So dealing and continuing the same topic, we will today discuss the calculation of new ratio and gaining ratio in various conditions when the partners takes retirement and the new partner, or you can say the remaining partner, are existed in the organization with a specific profit and loss. So as per the change in profit and loss ratio, let us deal the calculation of new profit and loss ratio and the calculation of gaining ratio also. So let us talk about the calculation of new profit and loss sharing ratio and the gaining ratio in various conditions. Let us deal the condition number 1. The condition number 1 is a situation where the retiring partner do not clarifies his share to any partner, any of remaining partner. यानी एक ऐसी कंडीशन जब हमारे रिटायरिंग पार्टनर जो है क्लियरफाई नहीं करता कि उसका शेयर वो रिमेनिंग पार्टनर को किस प्रपोर्शन में देगा या किस प्रपोर्शन में बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा. फॉर एग्जांपल, A, B and C are partner in the ratio of 1:2:3. Suppose it is given that C is taking retirement and ultimately we have to calculate the new ratio and gaining ratio also. So हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी सी दो तीन पार्टनर हैं जो 1:2:3 के प्रपोर्शन में प्रॉफिट शेयर करते थे, और उसमें से सी जो है रिटायरमेंट लेता है और अल्टीमेटली हमें बताया गया है, हमसे पूछा गया है व्हाट विल बी द न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड बी एंड एज पर दैट व्हाट विल बी द गेनिंग रेशियो. तो सबसे पहले हम लोग न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं सी के जाने के बाद. दिस इज द कंडीशन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे सी ने बिल्कुल नहीं बताया है कि उसका शेयर ए और बी में से किसको कितनी प्रपोर्शन में दिया जाएगा. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट न्यू रेशियो ऑफ ए. सबसे पहली चीज तो हम ये जान लें कि जो रिटायरिंग पार्टनर है
रिटायरिंग पार्टनर हमारी कंटिन्यूइंग फर्म का हिस्सा नहीं होगा, इसलिए न्यू रेशियो केवल ए और बी का निकाला जाएगा। तो सबसे पहले ए के न्यू रेशियो की बात कर लें तो ए का न्यू रेशियो जो है क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, अगर हम सपोज करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉफिट है 1 रुपए का, अल्टीमेटली उसमें से 6 प्रॉफिट जो है रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब रिमेनिंग प्रॉफिट को, जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसको ए और बी 1:3 के रेशियो में बांटते हैं, ठीक है। 1:2 के रेशियो में बांटेंगे तो ऐसी कंडीशन में ए का हिस्सा हो जाएगा 1/3। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस कंडीशन। ऐसी कंडीशन में अगर हम एलसीएम ले 6 तो 6 - 3 इंटू 1/3। ओके, एंड दिस सिचुएशन मीन्स 3/6 इंटू 1/3। अगर हम इसको जो है सिंप्लीफाई करें देन वी कुड फाइंड कि जो रेशियो है ए का वो हो जाएगा 3/18, ठीक है। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द न्यू रेशियो ऑफ बी, तो न्यू बी का न्यू रेशियो हो जाएगा हमारा, ठीक है। ए के सी के जाने के बाद जो अमाउंट होगी उसका 2/3 प्रॉफिट मिलेगा बी को, तो ऐसी कंडीशन में बी का शेयर बन जाएगा अल्टीमेटली दैट इज 3/6 इंटू 2/3। ऐसी कंडीशन में इन्हें मिलेगा 6/18। इन सच केस वी फाउंड दैट द रेशियो ऑफ ए एंड बी हैज द इक्वल डिनोमिनेटर। In the case when the equal denominator take place, then the ratio between A and B will calculated on the basis of numerator, that is 3:6. It means 1:2। ये रेशियो होगा हमारे A और B के बीच उनके प्रॉफिट शेयरिंग प्रपोर्शन का, यानी फ्यूचर में ये एक दूसरे के साथ 1:2 का प्रॉफिट शेयर करेंगे, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि द न्यू रेशियो और द फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी विल बी 1:2। इन सच केस व्हेन वी टॉक अबाउट द गेनिंग रेशियो इज क्वाइट सिंपल एज द न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। अगर हम गेनिंग रेशियो की बात करें तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे हम, गेनिंग रेशियो ए का, तो ए का न्यू रेशियो निकालेंगे। पहले ए का न्यू रेशियो हमने निकाला दैट इज 1/3, और अल्टीमेटली ए का ओल्ड रेशियो देखें हम तो ए पहले पाता था 1/6, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो अल्टीमेटली वी कुड फाइंड दैट 2 - 1/6 दैट इज 1/6, और अल्टीमेटली in the same manner we could calculate the ratio of B as 2/3 minus 2/6. It means 4 minus 2/6 यानी 2/6। अब अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि A और B के बीच जो प्रपोर्शन आ रहा है गेनिंग रेशियो का उसमें भी डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए जो न्यूमरेटर है उसी के बेसिस पे उनका गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट होगा, यानी ए और बी का जो गेनिंग रेशियो होगा वो भी 1:2 होगा। यानी एज अ कंक्लूजन वी कुड से दैट व्हेन अ पार्टनर डू नॉट क्लेरिफाई हिज शेयर ऑफ टू एनी रिटायरिंग और रिमेनिंग पार्टनर, then in such condition whatever the remaining profit and loss ratio is between the remaining partner will be their new ratio also, and as well as their gaining ratio also। जो भी रिमेनिंग पार्टनर का रिमेनिंग शेयर होगा वही रिमेनिंग शेयर उनका नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो भी हो जाएगा, और वही प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो उनका गेनिंग रेशियो भी बन जाएगा, एज यू हैव सीन इन दिस गिवन एग्जाम्पल। होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू। लेट अस टॉक one more condition in the case of calculation of new ratio and gaining ratio। हम बात करेंगे कंडीशन नंबर 2 की, when
the retiring partner share his PSR in the favor of other partner, यानी जो अदर पार्टनर हैं उनके पीएसआर में, उनके फेवर में अपने पीएसआर को ट्रांसफर कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो और गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन कैसे होती है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, दैट इज लेट अस टेक एन एग्जांपल वेयर A, B and C are the partner in the ratio of 1:2:3. We are taking the example same, almost same, with a different condition where C is taking retirement. C ने retirement ली और ultimately वो अपना PSR रिमेनिंग पार्टनर्स यानी ए और बी को इक्वल देने की कोशिश करता है। ठीक है, इक्वल मीन्स हाफ और यू कैन से 1/2। अब ये आपको क्वेश्चन में कई तरीके से इस प्रपोर्शन को जो है डिक्टेट करके देगा। इट कुड से लाइक 50%, इट कुड से लाइक 1/2 और 1/2। कभी कभी इसकी सीधे इसकी वैल्यू निकाल के दे देगा हमें। मीन्स अगर सी अपने शेयर का हाफ दे रहा है, इनिशियली ही वाज अर्निंग 3/6, इट मीन्स अगर वो अपने शेयर का 1/2 देगा तो 3/12। ठीक है, ये तीनों तरीके से आपको क्वेश्चन में जो है इसका शेयर दिखा देगा और आपसे पूछेगा व्हाट विल द न्यू शेयर एंड व्हाट विल द गेनिंग शेयर बाय द रिमेनिंग पार्टनर। ठीक है, अब आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई है, किस तरीके से हमें उसे कैलकुलेट करना है। सपोज द क्वेश्चन इज गिविंग दैट द रिटायरिंग पार्टनर सी इज गिविंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द रिमेनिंग पार्टनर इन 50%, मीन्स 50% टू ए एंड 50% टू बी। This 50% denotes the half proportion of his share in the favor of A and B. So let us talk about the calculation of new ratio of A and B, as these two are only the new partner and therefore the calculation of new ratio will be based on these two only. Okay, so let us talk about the new ratio. New ratio of A is equals to, पहले वो अपने शेयर की बात करेगा जितना वो पाता था, अल्टीमेटली वो पहले पाता था 1/6। इसके बाद सी की रिटायरमेंट के बाद उसे सी के शेयर का आधा हिस्सा और एडिशनल मिल जाएगा, तो इसलिए वो सी के शेयर का आधा हिस्सा पहले कैलकुलेट करेगा और उसके बाद उसे अपने रेशियो में ऐड कर देगा। इट मीन्स 1/6 प्लस 3/12। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम बात करें तो इसका सम टोटल निकालेंगे एलसीएम लेकर के, अल्टीमेटली 12। ये हो जाएगा हमारा 2 + 3, दैट मीन्स 5/12। ओके, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द सेम इन द केस ऑफ बी, दैट मीन्स initially B was earning 2/6. After the retirement of C, he will avail 50% share of C also. तो उसके शेयर को हम अपने पुराने वाले शेयर में ऐड कर दें तो अल्टीमेटली 2/6 हम पहले पाते थे और 3/12 इसमें हमने ऐड कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में हम एलसीएम लेकर के अपना न्यू रेशियो निकालेंगे, दैट इज 4 + 3 मीन्स 7/12। इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्टीमेटली ए और बी हैं उनका न्यू रेशियो 5:7 हुआ, एज द डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम, देयरफॉर द कैलकुलेशन ऑफ द रेशियो विल बी बेस्ड ऑन द basis of
न्यूमरेटर ओनली। ठीक है, अगर किसी प्रपोर्शन में, अगर किसी फ्रैक्शन में हमारी डिनोमिनेटर सेम होगी तो प्रपोर्शन जो है, रेशियो जो है, केवल न्यूमरेटर के बेसिस पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो वी फाउंड दैट द रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज बेस्ड ऑन द देयर न्यूमरेटर, दैट इज ए will avail the 5/12 of the ratio and b will avail the 7/12 of the ratio. Similarly, when we talk about the gaining ratio, तो ए के केस में गेनिंग रेशियो होगा, उसका जो न्यू शेयर है, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयर हमने पाया, दैट इज 5/12। इससे पहले वो जो है पाता था 1/6। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हम एलसीएम लेकर के इसका सॉल्यूशन पा सकते हैं, दैट इज 5 - 2 मीन्स 3/12। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द गेनिंग रेशियो ऑफ बी, पहले अभी वो जो है रिटायरमेंट के बाद जो है 7/12 पाता था और पहले वो पाता था 2/6। एलसीएम लेकर के अगर हम कैलकुलेशन करना चाहें तो हम पाएंगे कि अल्टीमेटली वो 3/12 जो है वो भी अवेल कर रहा है, एज अगेन द डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम, डिनोमिनेटर सेम आता है। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि न्यूमरेटर के बेसिस पे हम गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन करेंगे, एज द न्यूमरेटर रिमेन्स द सेम, देयरफॉर वी कुड से दैट gaining ratio is 3:3 or we can say 1:1। ठीक है, तो now we could say that the gaining ratio between A and B is remains 1:1 and the new profit sharing ratio between A and B is 5:7। This is the condition number 2 when the retiring partner shares his PSR in the favor of other partner. This question may be given in various forms, as you can see, sometime in the proportion, sometime in the case of percentage, sometime in the case of fraction only. So whatever the condition is given before you in the question, we will calculate the share of new profit and new partner on such basis। ऐसी कंडीशन में हम कैलकुलेशन जो भी फ्रैक्शन, जो भी परसेंटेज या जो भी प्रपोर्शन दिया होगा उसके बेसिस पे करेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि हम नए पार्टनर से एक्चुअली कितना पा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले केसेस में देखा था कि 3/6 का आधा हमने लिया, तो इट मीन्स हम एक्चुअली 3/12 प्रपोर्शन पा रहे हैं। ठीक है, और इस अवेलिंग रेशियो को, इस प्रपोर्शन को हमने अपने पुराने रेशियो में ऐड किया तो हमारा नया रेशियो बन गया। ठीक है, इस बात को मैं थोड़ा क्लियर एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरिफाई हो सके। सपोज ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर। अगर हम ये बात करें कि ए बी सी जो है कितने परसेंट आपस में प्रॉफिट शेयर करते थे, तो इन दैट केस वी कुड से दैट 33% और 33% और 33%। ये एक राउंड फिगर है, अल्टीमेटली अगर हम एग्जैक्ट फिगर की बात करें 33.33 आता जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमने एक राउंड फिगर की बात की। ठीक है, और उसी राउंड फिगर में हम कैलकुलेशन भी करेंगे। तो अल्टीमेटली अगर हम मान लेते हैं कि सी रिटायरमेंट लेता है, आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ सी, व्हेन द शेयर ऑफ पार्टनर शेयर ऑफ, और इफ यू वांट टू टेक दिस एग्जांपल इन अ मोर क्लियर मैनर, हम अराउंड में नहीं एग्जैक्ट फिगर लेना चाहते हैं। सो सपोज A, B and C are partner in the ratio of 1:2, or you can say that is 25% and 50%, and suppose C is taking the retirement and he said whatever the profit and loss of my share will be given to A and B equally means 1/2 and 1/2। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हम अगर 50% का आधा आधा अगर देना चाहें ए और बी को, इट मीन्स
A will be benefited by additional 25% and B will be benefited by additional 25%. In that case, the new ratio of A will 25% of his own share plus 25% of the share benefited by C. ठीक है, ये उसका अपना खुद का शेयर था. ठीक है, और एक सी की रिटायरमेंट के बाद उसने इतना गेन किया. ठीक है, अल्टीमेटली वी कुड से that in the same manner when we talk about B, तो वो भी पहले 25% प्रॉफिट पाता था और ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द रिटायरमेंट ही अगेन अवेल द एडिशनल 25%, मीन्स 25% ऑफ हिज ओन एंड 25% गेन फ्रॉम C. ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में टोटल 50% जो है उसका प्रॉफिट शेयर बन गया ए का और 50% प्रॉफिट शेयर बन गया हमारा जो है. सो आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ सी वी फाइंड द रेशियो बिटवीन ए एंड बी बिकम इक्वल. ए को भी 50% मिलेगा और बी को भी 50% मिलेगा. और ऐसी कंडीशन में जब हम इनके गेनिंग रेशियो की बात करें तो गेनिंग रेशियो में उतनी ही इंक्रीजमेंट हुई ए में जितनी की इंक्रीजमेंट हमारे मिस्टर बी में हुई. ठीक है, देयरफॉर द न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो बिकम इक्वल्स एंड दैट इज 1:1. ठीक है, तो इट इज अ क्लियर एग्जांपल that is given before you for calculating the new ratio and the gaining ratio when the share of retiring partner is transferred in the favor of other remaining partner. ठीक है, let us talk the third condition when the retiring partner's benefit provide his share of PSR to any specific partner only. तो ऐसी कंडीशन में थर्ड कंडीशन में हम बात करें अगर कि रिटायरिंग पार्टनर जो है अपना पीएसआर जब देता है किसी स्पेसिफिक पार्टनर को तो क्या कंडीशन बनती है. तो ऐसी कंडीशन में द गेनिंग रेशियो विल बी मेड इन द फेवर ऑफ only such partner to whom the benefit is provided by the retiring partner, to whom the benefit of retirement is provided by the retiring partner. ठीक है, and the increment or you can say new PSR will also be calculated in for him only. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए बी एंड सी आर पार्टनर in the ratio of 1:2:3 if C is taking the retirement and ultimately the benefit of retirement is provided to A only. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ PSR. ठीक है, ऐसी कंडीशन में ए को ही बेनिफिट मिलता है तो केवल न्यू PSR केवल और केवल जो अल्टीमेटली ए है उसका ही निकाला जाएगा क्योंकि बी को बिल्कुल भी बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है. तो इस कंडीशन में बी विल रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, और न्यू की PSR की बात करें अगर ए के फेवर में तो ए पहले पाता था 1/6 और इसमें 3/6 द फेवर द रेशियो ऑफ ए विल बी एडेड. देयरफॉर इन सच कंडीशन द रेशियो ऑफ ए विल बी 4/6 and since B is not earning anything therefore his ratio remains the same and it will be 2/6.
6. Since the numerator denominator remains the same, therefore the ratio between A and B will be 4:2, or you can say that is 2:1. ठीक है। और इसी तरीके से गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन भी केवल A के फेवर में की जाएगी, और A का गेनिंग रेशियो हो जाएगा हमारा 4/6, that is his new share, and minus 1/6, that is his old share. That means the share of the retiring partner, that is 3/6. I think this concept is quite much clear to you. अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेंगे रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर. टिल देन, टेक केयर. थैंक यू वेरी मच.